Hello student, today we are going to learn new topic, that is C++ functions. So let's understand what is functions in C++. So a function is a group of statement that together perform a task. Okay. So what is function? Function is a group of statement which perform the specific task, and every C++ program has at least one function which is main. So you already know main is a important function in C++. Every C++ program start with the main function, means main is a entry point for your program. We already saw this. So every C++ program contain a main function. Okay. So similarly you can define various functions in your program. So what is use of function? By using function you can divide your code into separate functions. Okay, what does this mean? Suppose take an example, calculator. We already saw a program on calculator. So in that we perform various tasks such as addition, subtraction, multiplication, division. So what happen in that, we are writing all code in our main function only. Okay, so all code we are writing in main function. So the calculator is a small program, so it hardly ended in 20 to 30 line, but in actual, in real life, when you are going to company, there are hundreds or 300 lines of code present. So it is not feasible to code entire in the main function. So what is solution? We can divide your code into separate function. So separate function means for example, consider you have to design a calculator. So we are writing code for addition in separate function, code for subtraction in separate function, then multiplication separate function, and division separate function, so that the you can easily track your code and it is easy to access your code. So here every function having two parts. First part is function declaration and second part is function definition. So we already saw the variable declaration and variable definition. So what happened in variable? In variable declaration, what we do? We write just int a. It is called as variable declaration. And variable definition, or we can say the initialization, we write int a equal to 10. So we initialize value, we give particular value. It is called as definition or initialization. Okay. And declaration, we only declare a value. So similarly in function you have two part. First is function declaration and second is a function definition. So we are going to see how function declaration take place and how function definition take place. So in declaration we are only declaring a function name. Okay, and in function definition we are define the actual working in that. So remember this, in declaration we only declaring the name, this function, and in function definition we are writing the actual code. So here is a function declaration part. So a function declaration tells the compiler about a function name and how to call the function. So function declaration, what it indicate? It indicate the your function name and how to call the function. So this is the syntax for the function declaration. So first is your return type. Okay, so return type may be integer, character, so depend on your requirement. So return type, then your function name. So you can mention any name here. Again you have to follow the certain
syntax for the function name, and in round bracket you have to pass the parameter list. If you are passing any parameter, then you have to pass. If you don't have any parameter, then it remain as empty, and at the end you have to give a semicolon. Okay, so this is the function declaration. So here is example. Suppose you are given two number, okay, number 1 and number 2, and you have to find the maximum number into, ओके तो दोनों में से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है. तो हियर वी आर राइटिंग इंट. इंट मीन्स रिटर्न टाइप. ओके सो दोनों नंबर यहाँ पर क्या लिए है, इंटीजर लिए है. सो व्हाट इज मैक्स, इज मैक्स क्या है, इट इज़ अ फंक्शन नेम. हमने मैक्स क्या लिखा है, फंक्शन नेम. एंड यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए, वो कौन से है, इंटीजर, इंट num1 एंड int num2. So here one important thing, parameter names are not important in function declaration, only their type is required. So instead of this you can write this also. So when you are declaring any function, suppose max function you have defined, so you have to write int max and the parameter. So you can avoid the name for the variable name, okay, such as int num. So here you have to write only the return type, which is the return type. Here important note is there, a function declaration is required when you define a function in one source file and you call that function in another file. In such case you should declare function at the top of the file calling the function. Means if you define a function in one source file, suppose in your project there are number of source file present, okay, so take example, your project contain 2 source file. Source file means you are creating program with .cpp extension. So your project contain multiple .cpp files. Suppose you want to call function present in this file to here, then you require the function declaration. Okay, so as here mentioned, when you define a function in one source file and you call that function in another file, means इस फाइल में आपने फंक्शन लिखा है और वही फंक्शन आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो. ओके, सो इन सच केस यू शुड डिक्लेयर अ फंक्शन at the top of file calling the function. Okay, so at the top of file you have to declare a function. So this is the compulsory. Within same file you don't require the write this declaration, but if you are calling from another file then you require the this declaration. तो ये याद रखो. So this is the syntax for the function declaration. You have to mention return type, function name and parameter. Now consider function definition part. So here is the syntax for the function definition. So function definition syntax, what is syntax? First you have to mention again return type, then function name, parameter list, and here you have to open a curly bracket and a close curly bracket, and in between this part is called as the body of function. So in between curly bracket you have to write your code for function. So the declaration and definition syntax is same, but little change. क्या है? So in declaration at the end of parameter list you have to give
semicolon. Okay, but in definition you have to define means क्या है, you have to mention the what is working of particular function. So all the code, actual code आप इस कर्ली ब्रैकेट में के अंदर लिखोगे, इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप आपका कोड लिखोगे. तो ये याद रखो, इन फंक्शन डेफिनेशन में आपको एट द एंड सेमीकोलन नहीं देना है, लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको देना है. तो ड्यूरिंग द ओरल एक्सटर्नल में आस्क दिस क्वेश्चन, सो यू हैव टू differentiate between function declaration and function definition. So this is the very important point. So declaration, we are only declaring the name and return type of function, and in function definition actual code is written. So here in return type a function may return a value. If you are providing any integer or character, then it return that particular value. And some functions perform the desired operation without returning value. If any function does not return any value, in that case return type is void. Okay, so if you mention at the start void and then function name and parameter, so void function does not return any value. Then function name is the actual name of function. Then parameter, a parameter is like a placeholder. When a function is invoked, you pass a value to the parameter. So यहाँ पर सपोज हमने मैक्स वेरिएबल मैक्स फंक्शन देखा था. मैक्स में क्या था, हमने दो वैल्यू पास किए थे, दो इंट पास किए थे. तो जो भी इंटीजर पास करोगे आप, तो वो इसमें स्टोर हो जाएंगे. इंट ए सपोज एंड इंट बी है यहाँ पर. तो सपोज आपको 100 एंड 200 का मैक्स फाइंड करना है. ये दो नंबर है आपके पास, आपने फर्स्ट नंबर ए लिया 100 एंड सेकंड नंबर बी लिया है 200. सो इसमें क्या रहेगा, पैरामीटर ए को क्या आएगा वैल्यू 100 एंड बी को क्या जाएगा वैल्यू 200. एंड जो मैक्स है वो क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर फाइंड करेगा. उसके लिए कोडिंग आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे. And function body, the function body contain collection of statements that define what the function does. Okay, मतलब एक्चुअल कोड आपको क्या करना है, मैक्स फाइंड करना है दो नंबर में से, तो उसका कोड क्या किस में आएगा, फंक्शन बॉडी में. तो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन. तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, आपको एक्चुअल कोड लिखना है, एंड फंक्शन डिक्लेरेशन में ओनली return type and your function name. So here is a example. So here is a function definition for the max. Okay, max function name है, हमने int return type define किया है. then अब यहाँ पर आपको क्या है, int num1 and int num2 डिक्लेयर करना है. तो प्रीवियसली हमने क्या लिखा था डिक्लेरेशन में, ओनली इंट एंड इंट. ओके, अब यहाँ पर क्या आपको एक्चुअल पैरामीटर नेम पास करने, num1 num2. ओके, जो भी पैरामीटर रहेंगे वो आपको यहाँ पर पास करने हैं. देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इंट रिजल्ट. रिजल्ट स्टोर करने के लिए, जो भी मैक्स रहेगा दो नंबर में से, तो वो स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है. अब यहाँ पर क्या मेंशन किया, इफ लूप लिया है, num1 इज ग्रेटर देन num2. रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, नंबर वन अगर ग्रेटर है नंबर 2 से, तो क्या स्टोर होगा, num1 रिजल्ट में जाएगा. एल्स क्या होगा, रिजल्ट 2 में num2 स्टोर होगा, मतलब नंबर 2 ग्रेटर है. एंड एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न रिजल्ट. ओके, रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, सो दैट जो भी मैक्सिमम नंबर रहेगा वो किस में आएगा, रिजल्ट में, और वो वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे. तब एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा. दिस इज ओनली फंक्शन डेफिनेशन पार्ट. तो फंक्शन डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, रिटर्न टाइप,
देन फंक्शन नेम, देन पैरामीटर जो भी आपको लिखने हैं, एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द एक्चुअल कोड. So here is example. So in this example you have to find the max between two number. You are given two number, integer a and integer b. integer a की वैल्यू कितनी है 100, integer b की वैल्यू कितनी है 200, एंड उसमें से आपको मैक्स नंबर फाइंड करना है यूजिंग फंक्शन. तो फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिक्लेरेशन पार्ट. डिक्लेरेशन कब लिखना है, डिक्लेरेशन एक नोट है डिक्लेरेशन के लिए, हमने वो देखिए, जब वन सोर्स फाइल टू अनदर सोर्स फाइल आपको सेम फंक्शन कॉल करना है तब आप डिक्लेरेशन लिख सकते हो, नहीं तो वो कंपलसरी नहीं है. फिर भी यहाँ पर मेंशन है फंक्शन डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप. फंक्शन नेम क्या है, मैक्स इज फंक्शन नेम, एंड टू पैरामीटर हमने यूज किए. पैरामीटर मीन्स वैल्यू. अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. ओके, यहाँ पर दो ही पैरामीटर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें दो वैल्यू में से कंपेयर करना है. इसके लिए फर्स्ट क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर num1 में स्टोर करेंगे एंड सेकंड नंबर num2 में स्टोर करेंगे. तो दोनों का कंपेयर करना है, इसलिए यहाँ पर दो पैरामीटर हमने लिए. देन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन RET. तो जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी, ओके, जो मैक्स ऑफ ए कॉमा बी की है वो स्टोर करने के लिए मैक्स इंट RET लिया है. अब यहाँ पर क्या है, RET क्या है, एक इंटीजर इक्वल टू मैक्स. मैक्स क्या है, हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है. ओके, मैक्स ऑफ ए कॉमा बी. ओके, तो अब फंक्शन डेफिनेशन कैसे होता है वो देखेंगे. सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन पार्ट. ओके, देन अगेन सेम int max, int num1, int num2. देन एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया int result. ओके, तो सेम रहेगा, सेम कोड जो प्रीवियसली हमने देखा. int result if num1 इज ग्रेटर देन num2, तो क्या होगा, num1 प्रिंट होगा, एल्स num2 प्रिंट होगा. एंड यहाँ पर रिटर्न क्या करना है आपको, रिटर्न रिजल्ट. ओके, तो क्या करेगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा. अब ये हो गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर. अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये देखते हैं हम. तो हमें पता है प्रोग्राम का स्टार्ट कहाँ से होता है, एंट्री पॉइंट कहाँ है, मेन इज एंट्री पॉइंट फॉर योर प्रोग्राम. तो यहाँ पर आएगा. ओके, देन इंट ए इक्वल टू 100 होगा. ए को 100 वैल्यू असाइन होगी, बी को 200 वैल्यू असाइन होगी. ये डिक्लेयर किया है RET. अब RET इक्वल टू मैक्स, तो इसे क्या कहेंगे, कॉलिंग अ फंक्शन. ओके, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम. और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर मेन एक फंक्शन है. एज यू नो हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन कंपलसरी आपको लिखना पड़ता है. तो मेन फंक्शन है, उसके आउटसाइड आपको फंक्शन लिखना है. डोंट राइट एनी फंक्शन इनसाइड मेन, आपको मेन के आउटसाइड. तो मेन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ मेन स्टार्ट हुआ है. ओके, दिस करली ब्रैकेट टू दिस इज द एंड ऑफ मेन. इसके बाहर आपको न्यू फंक्शन लिखना है, उसके अंदर फंक्शन नहीं लिखना है. ओके, जो भी आप फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करोगे उसकी डेफिनेशन आउटसाइड मेन ही लिखनी है, ये याद रखो. सो जो भी कोड है वो कहाँ पर लिखना है, आपको मेन के बाहर लिखना है, तो ही उसको कॉल कर सकते हैं. तो इस लाइन पर आने के बाद क्या होगा, ये जंप कहाँ पर करेगा, इस लाइन पर जंप करेगा. ओके, मैक्स ए कॉमा बी. अब ये कहाँ पर जंप करेगा, यहाँ पर मैक्स फंक्शन पर, क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर डिफाइन किया है. अब
यहाँ पर पैरामीटर क्या पास किए, ए कॉमा बी, हमने 2 नंबर पास करने थे, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था 2 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 2 नंबर कौन से पास किए, ए एंड बी। ए में क्या वैल्यू 100, बी में क्या है 200। तो यहाँ पर इंट num1 में क्या जाएगा 100 एंड num2 में क्या जाएगा 200। इंट रिजल्ट डिक्लेयर किया है स्टोर करने के लिए वैल्यू। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इफ num1 में वैल्यू क्या है 100 इज ग्रेटर देन 200 है क्या, 100 इज ग्रेटर देन 200 है क्या, नहीं। तो क्या होगा, वो एल्स में चला जाएगा एंड रिजल्ट इक्वल टू क्या आएगा num2। मतलब रिजल्ट में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी num2 में कौन सी वैल्यू है, b की वैल्यू 200। ओके, तो 200 वैल्यू किस में जाएगी, रिजल्ट में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न रिजल्ट। ओके, तो ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। ओके, ये क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट में क्या वैल्यू है 200 वैल्यू है। तो RET की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। ओके, RET में क्या वैल्यू हो जाएगी 200 एंड हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी आउट मैक्स वैल्यू इज RET। तो मैक्स वैल्यू इज 200, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा मैक्स वैल्यू 200। ओके, तो ये होगा फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो भी फंक्शन डिफाइन करना है वो मेन के आउटसाइड डिफाइन करना है। ओके, क्योंकि मेन एक खुद एक फंक्शन है एंड डिक्लेरेशन एट द टॉप करना है एंड डेफिनेशन यू कैन राइट आफ्टर मेन। देन ये होगा डिक्लेरेशन एंड दिस इज सिंटैक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन। अब आपके लिए असाइनमेंट क्या है, जो हमने कोड देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, हमने वो सिर्फ मेन में किया था। अब आपको क्या करना है, यूज़र थ्रू वैल्यू लेने हैं एंड उसके लिए हर एक के लिए सेपरेट फंक्शन डिफाइन करना है। जैसे एडिशन के लिए फंक्शन लिखना है, उसको कॉल करना है। देन सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन लिखना है, कॉल करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन लिखना है, उसे कॉल करना है। डिवीजन के लिए फंक्शन लिखना है एंड उसे कॉल करना है। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको यूजिंग फंक्शन करना है। प्रीवियसली हमने क्या किया था, डायरेक्टली मेन में ही किया था। ओके, नाउ वी कैन डू विद द फंक्शंस। तो हर एक के लिए आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैक्स के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया, एडिशन का एक फंक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वैसे 4 फंक्शन आपके प्रोग्राम में होने चाहिए एंड उसको कॉल करना है एंड उसका रिजल्ट प्रिंट करना है। तो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन को कॉल कैसे करते। तो कॉल मीन्स क्या है, जब भी आप फंक्शन का नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा है मैक्स, उसके बाद इन ब्रैकेट a कॉमा b पैरामीटर हमने पास किए, तो ये क्या होगा, कॉल, फंक्शन को कॉल। इससे क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली जंप करेगा इस कोड पर जहाँ पर आपने फंक्शन लिखा है एंड ये कोड एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोड उसके आगे की लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब तक ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता, तो यहाँ पर आपने सपोज 4 फंक्शन लिखे, तो चारों फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद उसके नीचे जो भी आपने लिखा है कोड वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये याद रखो, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन नेम लिखना है एंड पैरामीटर, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर, तो क्या होगा, फंक्शन को कॉल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको ओरल में एक्सटर्नल पूछ सकता है, हाउ टू कॉल फंक्शन बाय, यू कैन से डायरेक्टली फंक्शन नेम।